to the dais. I request Harshvardhan Kedia to escort our guest of honor. I request our incoming President Pranav. A big round of applause. Meeting call to order. I request Vikram Kejriwal to present a welcome bouquet to the President of the Rotary Club of Akola Midtown, Manish Ji Kedia. He is currently not present. We'll move on. I request Protractor Kunal Bajoria to present the welcome bouquet to Mr. and Mrs. Sunil Kumarji Sureka, parents of our incoming President Pranav Sureka. And leadership. Together, let's ignite change and make a difference in the world. I request all the dignitaries to step forward. I request Road Raptor Harsh Vakharia to present today's invocation and light a lamp of positivity in our minds. Good morning. Good morning, ladies and gentlemen. Today I am here to express my thought about our installation ceremony, Dashak. True leadership is not about holding the power, but empowering others to shine. Which means असली लीडर वो नहीं होता है जो अपने हाथ में सत्ता रखना चाहता है, वो होता है जो दूसरों को आगे बढ़ने का मौका दे और हम लोग पूरा भरोसा करें ताकि वो पूरे तरीके से संपन्न बने. थैंक यू. Goda, parents of our incoming secretary Harshal Goda, treasurer, sorry. Of mixed emotions. Emotions of pride, nostalgia and gratitude. अगर मैं इस पोस्ट की बात करूं तो हर्षवर्धन, नमन and Shivam, you played a key role in making me the president. I am forever grateful for your trust and confidence. I thank you for believing and supporting me. ये अपॉर्चुनिटी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है मेरी पर्सनल लाइफ में एज वेल एज प्रोफेशनल, एंड आई कैरी इट ऑलवेज विद मी. When I took up this responsibility, I knew the journey wouldn't be easy.
incoming secretary Kaushal Dhavalia, our outgoing secretary Vineet Savadra. Treasurer, Protractor Arjun Rohatia. And our incoming treasurers, Protractors Krishna Kedia and Harshal Goda. As per protocol, the incoming and outgoing committee members have switched their respective seats. For the outgoing board members who have served this club with dedication and passion, their hard work and commitment have played a significant role in the success and growth of our club. Please join us in applause for the president and his outgoing board and welcoming the new president and his board. Now I'd like to very proudly introduce our outgoing secretary and newly installed president Pranav Surekha. He's played a vital role in keeping our club operating smoothly and keeping all members involved in projects. Guest Sri Sanandi Kondalekar, respected guest of honor Sandeep Ji Angar, dignitaries on and off the dais, Rotarians, Protractors, special invitees, friends and families. It is with immense pride and gratitude that I stand before you today as the 10th president of Rotary Club of Akola. It's a tribute to the past presidents who built this club brick by brick. Today, I salute their vision and passion which brought us here today. When I first joined Rotary, I never imagined I would one day have the privilege to lead this club in its 10th chapter. But here I am, filled with humanity, excitement and a clear vision for year ahead. As the 10th president, I see this year as a bridge. सामने देखिए I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness had been waiting. Look, and jubilation. I want the world to know I'm happy. And the memories bring back you know I never drop, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah. Everything gon' be alright. थोड़ा सामने देखिए तो आ जाए आ जाओ पास में सामने देखिए I now invite Naman Khandelwal, President 20. I now invite Vikram Kejriwal, President 20.
now. आओ अभी आओ आओ अरे आपका खेलने जो है बहुत बड़ी बात है हाँ हाँ बन जाए आइए धन्यवाद मिस्टर एंड मिसेस खंडेलवाल फॉर गुड एनओसी। आज बहुत खुशी हो रही है। रोट्रैक जो 20 साल पुरानी, मैं रोट्रैक में जब था, जब एक टेम्पो जो चलता था, आज वही टेम्पो और डबल फास्ट स्पीड से, डबल इंजन से दुरंतो एक्सप्रेस के साथ में चल रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पे हमारे तो इसमें सब जन को ये पता है कि ये रोट्रैक क्या चीज थी और क्या है, और आज वो देखते हो शायद मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर बड़ी खुशी हो रही होंगी कि आज ये मूवमेंट जो है कैसा चल रहा है एकदम। तो वंस अगेन स्पेशली बहुत बहुत बधाई जूजर और पूरे 5 9 प्रेसिडेंट्स को कि बहुत अच्छी संस्था ये चल रही है। डियर प्रेसिडेंट प्रणव, आज के सभा के चीफ गेस्ट कुंडलिकर जी, गैलेक्सी ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट, मैं रोटरी प्रेसिडेंट हेमंत, मेरे रोटरी प्रेसिडेंट के ईयर के एकदम हसमुख प्रेसिडेंट, रोट्रैक प्रेसिडेंट हर्षवर्धन का अच्छा उधर चल गया ये यार क्या बात है, एकदम डायरिंग उधर, लेकिन ठीक है। बहुत जबरदस्त कार्यकर्ता है हर्षवर्धन, रियली आई अप्रिशिएट। मैं आपको साल भर में वो साल में देखा, आपने बहुत बहुत अच्छा काम किया, रियली अप्रिशिएट। Rishabh Goenka. It gives me immense pride and heartfelt joy to welcome you to the installation ceremony of Rotaract Club of Akola Metta. हमारे रिस्पेक्टेड रामदेव जी, हमारे पास्ट प्रेसिडेंट, अभी इमीडिएट प्रेसिडेंट, और अभी जो सारे जितने भी 10 साल में प्रेसिडेंट रहे उन सब प्रेसिडेंट्स, और सामने जो बैठे हैं ऐसे डिग्निटरीज और रिस्पेक्टेड क्लब मेंबर्स। तो एक 2-3 करेक्शंस में कर दूं। मुझे अतिथि बोला गया है, तो बेसिकली अतिथि वो होता है जिसकी आने की तिथि किसी को पता नहीं होती। अब आज के प्रोग्राम का तो ऐसा है कि मैं डे 1 से आपके बीच में ही इन्वॉल्व हूँ, तो सबको पता नहीं होगा। आज के जो चीफ गेस्ट थे हमारे अजीत जी चौहान, मुंबई से आने वाले थे। कल रात में 10 बजे तक वो आने वाले थे, और रात में 10 बजे पता चला कि उनकी सीवियर हेल्थ इश्यू आया था और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, वो नहीं आ पाए। तो अभी जो नाइट वॉचमैन वाला विषय होता है, वो मुझे बोला गया है कि आपको चीफ गेस्ट करके आपको ही आना है, तो मैं यहाँ पे चीफ गेस्ट करके हूँ। तो इसलिए अतिथि तो मैं हूं नहीं हूं, मैं आप सबके बीच में का एक सदस्य हूं, मेंबर हूं। तो ये सब ऐसा स्टार्ट हुआ कि पहले तो ऐसा था कि मुझे उनको एस्कॉर्ट करना था, तो एज अ ड्राइवर उनको मुझे यहाँ तक लाना था, आपके बीच में बैठना था, और वो मेरी जगह पे बात करने वाले थे। तो अभी मैं बोलने के लिए आना है, तो कुछ ना कुछ बोलना है। आपके जैसे स्टीम्ड गेस्ट है, उनके सामने कुछ बोलना है। तो रात में 10:30 बजे जब हमारी बात हुई कि मुझे फाइनली आना है 10:30 11 बजे, तो 11 बजे मैंने ChatGPT खोला। तो वैसे मैं रोटरी क्लब ऑफ अकोला सेंट्रल का मेंबर रह चुका हूँ, तो मुझे मोटा मोटी आइडिया थी कि क्या रोटरी क्लब है वगैरह ऐसा। ChatGPT खोला, फिर एयरटेल का एक परप्लेक्सिटी प्रो का भी आया है, तो भी उसमें और एडवांस थोड़ा देखा। मेरे आईपैड में सब लाया हूं मैं, पर जब मैं यहाँ पे एंटर किया तो मैंने सब रख दिया। आपको ये पूरा क्राउड और ये सबको देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे अलग से कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप सब समाज में, सोसाइटी में काम करने वाले लोग हैं, आप इसीलिए आपसे कुछ अलग से थियोरेटिकल या बुक नॉलेज मुझे कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप सभी सालों से रोटरैक्ट क्लब के मेंबर हो और आप ग्राउंड पे अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से काम कर रहे हो। मैं सिर्फ मेरी कुछ जो चीजें हम अलग अलग सोसाइटी के स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में काम करते हैं, कुछ मेरी अनुभव शेयर करूंगा, कुछ आपसे मिलूंगा, एक 5-10 मिनट का अपना इंटरेक्शन रहेगा। ओके, तो बात ऐसी कि मैं भी एक
30-35 एज का एक एज ग्रुप है, आपके ही इमीडिएट साथ में का भी हूँ। आई स्टार्टेड इंजीनियरिंग मेरा हुआ इन नागपुर में। MBA मैंने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का नेशनल इंस्टीट्यूट है पुणे में, वहां से किया। लोढ़ा ग्रुप में मैं जॉब करता था, मैं और मेरी वाइफ दोनों जॉब करते थे। 2016 में आई डिसाइडेड टू कम बैक टू अकोला, और वो टाइम पे मेरे फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबने हमको, जो मराठी में कहावत है कि मूर्खात काटना, तो सबने समझा कि ये पागल है, कि आज पुणे वाले, मुंबई वाले, आउट ऑफ इंडिया ऐसे सब बोलते हैं ना कि ब्रेन ड्रेन एक प्रकार का जो है, वैसे एक प्रकार का माइंड पावर का एक ड्रेन पूरा हर जगह हो रहा है। तो ये रिवर्स प्रोसेस कैसे चालू है? तो मेरा एक कमिटमेंट था मेरे लिए कि मेरा एजुकेशन होने के बाद, कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे वापस आना है, और जहाँ पे अपना मातृभूमि बोलते, कर्मभूमि बोलते, जहाँ से अपन पैदा हुए हैं, वहां पे अपने को कुछ देना है समाज को। तो उस वे में मैं 2016 के एंड में यहाँ पे अकोला में आया। अब आने के बाद जो सबको एक रहता है कि मैं कुछ मोटिवेशन से आया था, तो मैंने अलॉन्ग विथ माय कंस्ट्रक्शन वर्क मैंने सोशल वर्क भी कुछ चालू किए। हमने राष्ट्रीय विचार मंच का एक समवयन जो बोलते हैं, एक एज का एक पूरा ये किया। उसका ग्रुप में हमने अलग अलग एक्टिविटीज करी, जैसे आपने बोला ब्लड डोनेशन कैंप्स, अलग अलग प्रोजेक्ट्स को विजिट करना, ऐसा सब करते करते। कोविड के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि हमने कोविड के वक्त जितने भी यंग स्टूडेंट ये है, अपने एजुकेटेड जो भी क्राउड है, उनके लिए हमने टॉप क्लास नेशनल लेवल के जितने भी स्पीकर्स रहते, उनका एक लेक्चर सीरीज चालू किया। उस वजह से हमको एक अच्छा आउटपुट ये मिला कि नियर अबाउट 150 प्लस एजुकेटेड अकोला का जो मॉब है वो हमारे पास कलेक्ट हुआ। तो कोविड के बाद हमने उनको क्या किया कि जितने भी यहाँ पे सोशल प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जैसे आपको पता है गायत्री बालिका आश्रम चलता है, यहाँ पे एक गौरक्षण का एक बड़ा रेस्क्यू सेंटर है, एनिमल रेस्क्यू सेंटर, फिर एक डॉक्टर हेडगेवर हॉस्पिटल है, ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हमने जो बोलते प्लेटफॉर्म देना, ऐसा प्लेटफॉर्म वो सारे मेंबर्स को दिया। और उस वजह से वो जो वहां पे आने वाले जितने भी क्राउड था, जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा, किसी को कुछ क्लिक हुआ, किसी को कुछ क्लिक हुआ। तो कुछ लोग ऐसे, मतलब आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि जैसे आपको पता है डॉक्टर हेडगेवर ब्लड बैंक करके है, वहां पे थैलेसीमिया प्रोजेक्ट चलता है। तो थैलेसीमिया प्रोजेक्ट में अकोला जिला में, डिस्ट्रिक्ट में 60 के ऊपर थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, जिनको एवरी अल्टरनेट इंटरवल ब्लड की जरूरत रहती है, किसी को 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में। तो ऐसा उनका एक उन्होंने, अच्छा ये पूरा डॉक्टर हेडगेवर ब्लड बैंक ये पूरा बेयर करता है ब्लड बैंक करके। तो उन्होंने फिर एक स्कीम चालू की थी कि ब्लड डोनर का एक स्कीम चालू किया कि जैसे मैं एज अ डोनर हूं, तो नॉट नेसेसरीली मैं ब्लड ही दूंगा, मैं फाइनेंशियली भी डोनेशन दे सकता हूं। तो एक एडॉप्शन की स्कीम चालू कर। आज भी वो साल में एक बार प्रोग्राम लेते हैं कि ब्लड रिसीवर जो है और ब्लड डोनर, उसमें फंड्स रिलेटेड भी और ब्लड रिलेटेड भी, उनका एक वो एक कार्यक्रम करते हैं। तो उसमें पता चलता है कि जो डोनर है और जो रिसीवर है। तो हमने हमारे माध्यम से हर साल एक नियर अबाउट 5 बच्चों को हमने अडॉप्ट किया है। तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ है कि सिर्फ अर्निंग या फिर सिर्फ हमारा आई वी माई सेल्फ ऐसा न रखते हुए समय सोसाइटी को भी देने का कुछ उसमें एक ये रहा है। तो हम भी रोटरैक्ट के माध्यम से, नॉट स्पेसिफिकली यही, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स है जिसमें हम उतर सकते हैं। फिर जैसे हम यहाँ पे आज जो बैठे लोग हैं, इसमें ओवरऑल हमारी जो स्ट्रेंथ है, उसमें हम अकोला के जो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स है, हम उसमें अगर कुछ दे सकते हैं, गिव बैक कर सकते हैं, तो वो सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जैसे मैं कुछ अगर सुझाव तो ऐसा कि अकोला में आपको पता है, सबको पता है कि ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। तो ट्रैफिक प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हम कर सकते हैं क्या कि जैसे यहाँ पे आरटीओ और डिप्टी आरटीओ, उनके साथ हम पहले शुरुआत में प्लानिंग के हिसाब से 5-6 लोग नहीं जाना, और जितने भी प्राइम सिग्नल्स है, जहाँ पे सिग्नल्स बनाए हुए है नहीं, वहां पे हमने फिजिकल जाके वॉलंटरी करना। तो हफ्ते में 1 दिन 1 घंटा भी किया तो लोगों को वो दैट कैन बी एक आदत पड़ने की एक अच्छा ये आ सकता है, और हमारा प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस भी दिख सकता है। जैसे हमारी रोटरैक्ट की टी शर्ट है, तो टी शर्ट पहन के भी हमने वो पर्टिकुलर सिग्नल पे उसका हम वर्कआउट कर सकते हैं, बट दैट कैन बी एक अच्छा जो बोलते फिजिकल लेवल पे काम करना, एक आउटपुट आ सकता है। फिर जैसे हम राष्ट्रीय विचार मंच का बता रहे थे, तो हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम स्पेसिफिकली अंडर प्रिविलेज क्लास की गर्ल चाइल्ड जो होती है, उसके हायर एजुकेशन का हम खर्चा उठाते हैं। तो हर साल का एक हमारा टारगेट रहता है। यही साल हमने देवश्री मेहरे करके है,
तो कृषि नगर एरिया में रहती है, एकदम एवरेज घर की लड़की है। उसका IIT BHU में नंबर लगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो IIT में उसको स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी वो बात की बात, पर टू स्टार्ट विथ एजुकेशन फीस का हमने वो एक प्रोजेक्ट किया। तो हम भी ऐसा कुछ स्पेसिफिक टारगेट करते हैं, क्योंकि समाज बहुत बड़ा है, हम नॉट नेसेसरी कि हर एक को कैटर कर सकते हैं, वो एक अच्छा ही है। दूसरा हमारे कर सकते हैं क्या कि, और एक बात ऐसा है कि मैं अकोला में आया तो मैं आधा बताना रहा, मैं आया तो मुझे सबने बोला कि तू पागल है वगैरह, तू आ रहा है उधर। तो मेरे बैच में जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या फिर अकोला में जितने लोगों ने इंजीनियरिंग किया, तो हार्डली एक दो जो गिन सकते हैं ऐसे लोग हैं जो अकोला वापस आए। रेस्ट ऑल जिनका खुद का बिजनेस था या फिर फैमिली ओन बिजनेस या फिर कुछ प्रैक्टिस होंगी। अदरवाइज आज जितने भी सारे IT में पुणे, मुंबई, बैंगलोर, आउट ऑफ इंडिया ऐसा है। तो यहाँ पे जो बात हुई थी ब्रेन ड्रेन की या फिर जो मैन पावर रिसोर्सेज HR ड्रेन की जो प्रॉब्लम है अकोला में, कि यहाँ पे 12th तक रुकते हैं, उसके बाद एक बाहर गए तो फिर एक तो बिजनेस है तो ही आएंगे। तो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या कि यहाँ पे जितने भी आज के दिन में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं, फॉर्चुनेटली अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो एकदम यंग है, हम उनको अगर अप्रोच कर सकते हैं रोटरैक्ट के माध्यम से, कि जैसे मैं 2014 में महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस के लिए मुंबई में था, तो वही टाइम पे 6 महीना पहले लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे। तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट के लिए हम दिल्ली गए थे। दिल्ली में जो नए नए वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे दिल्ली ईस्ट के, वो थे महेश गिरी करके। तो आज वो गिरनार में वहां के महंत है, गिरनार का जो मंदिर है वहां पे। तो उन्होंने हमने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था और हमने एक प्रोजेक्ट चालू किया था वहां पे, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है दिल्ली का, वहां के लिए। अब वो है कि वो थोड़ा अर्बन एरिया था, तो वहां पे कर पाए। हम यहाँ कर सकते हैं क्या, देख सकते हैं कि हमने किया था कि MP ऑन व्हील्स करके प्रोजेक्ट था। तो उनको हमने बोला था कि आप एक अपना एक जो बोलते हैं ना कि एम्बुलेंस जैसा गाड़ी रहता है, वो गाड़ी बनाओ और MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन व्हील्स। तो आप अपने जितने भी तालुका लेवल से वहां पे वो पूरा उनका जो ट्रक या फिर जो है वो लेके जाना, और जितने भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे किसी को कुछ कागज नहीं मिलता है, किसी को मेडिकल रिलेटेड एड नहीं मिलती है, तो वहीं पे ये प्रोजेक्ट हमने कंडक्ट करना, ऐसा कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि लोगों को जैसे कुछ छोटे छोटे काम के लिए तहसील आना पड़ता है, जिला लेवल आना पड़ता है, तो वो उनका कम होते हुए ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको भी एक अच्छा PR रहेगा और हम लोगों को भी एक अच्छा प्रोजेक्ट रह सकता है। ऐसा कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा चला था। उसमें और एक प्रोजेक्ट हमने चालू किया था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए। वो था कि जो अभी आपको सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों का भी वॉर रूम है मुंबई में, देवेंद्र जी का भी वॉर रूम है। तो हम यहाँ पे भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी का वॉर रूम चालू कर सकते हैं। उसके लिए क्या मतलब अकोला के जितने भी सिविक इश्यूज है उसके लिए अकोला के जो टॉप है, जैसे कोई अच्छा डॉक्टर है उसको एम्पैनल कर देना, अच्छा इंजीनियर उसको एम्पैनल करना, अच्छा सिविक रिलेटेड जितने भी एम्यूनिटीज रिलेटेड जिसको आइडिया है, आर्किटेक्ट है, उनको एम्पैनल करना और उनको बोलना है कि आपको मेंटरिंग करना है। तो मेंटरिंग कैसा कि ये एक प्रोग्राम डेवलप करना और 6 महीने का साल भर का उनको इंटर्नशिप देना। तो उससे क्या होगा कि जो जैसे आप है मैं हूं, ऐसे अकोला के अनगिनत लोग हैं, लड़के हैं जिनको कुछ तो भी करके दिखाने का है। तो एक उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि ऑफिस उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मिलेगा या फिर जो भी गार्डियन मिनिस्टर उनका मिलेगा, और आप लोग उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। जैसे एक आधे को हेल्थ केयर में इंटरेस्ट है तो उसको बहुत कुछ करने की इच्छा है, पर जो गैप है और जो अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको ब्रिज करने का काम वो कर सकते हैं। एक अच्छा प्रोजेक्ट अपने लिए हो सकता है। फिर अगेन मैं थोड़ा सा आपको ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बात हुई थी थोड़ी सी कि अपने मेडिकल एड रिलेटेड कुछ होता है कि आपको सबको पता है CM रिलीफ फंड करके भी एक अच्छा गवर्नमेंट का स्कीम है। तो फॉर्चुनेटली मैं मुंबई में मंत्रालय में जो काम करते हैं उनके साथ मेरा मंथली में 1-2 बार अच्छा मीटिंग होता है, और अकोला के आसपास के बहुत से लोगों को मेडिकल एड जो अलग अलग स्कीम्स में बैठते नहीं है, ऐसे लोगों को CM रिलीफ करके एक अलग से फंड होता है, उसमें से उनको हेल्प मिलती है। तो वो भी हम दे सकते हैं। आपको अगर ऐसे कोई आइडेंटिफाई होता है आप प्लीज उनको आइडेंटिफाई करिए और हम उनको अच्छी हेल्प मिलके दे सकते हैं। और ऐसा बहुत कुछ है करने के लिए। मोदी जी ने डेवलप भारत बाय 2047 का ये दिया है लक्ष्य हमको। हम सब वहां पे वो टाइम पे अपने 50-60s में होने वाले हैं और हमको भी वो टाइम पे डेवलप भारत देखना है। तो जैसे अलग अलग स्टेटा होता है वैसे भारत देश करके हमारा एक स्टेटा है, एक राज्य करके स्टेटा है और हमारा अकोला करके भी स्टेटा है।
तो अकोला डेवलप अकोला बाय 2047 ऐसा भी हम कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं क्या, उसके लिए भी हमने इनिशिएटिव लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जो प्रोजेक्ट करते हैं ऑल आपका बहुत उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन तो है ही, और इसके लिए भी हम कोलैब भी कर सकते हैं। आप मुझे आई एम ऑलवेज रेडी, आप कुछ भी बताइएगा। बाकी और कुछ बोलना रहेगा तो हम उसके लिए बोलते हैं। मैं इसे सिर्फ आखिरी इसको कंक्लूड करने के लिए बोलूंगा कि ये थोड़ा पर्सनल लेवल पे रहेगा कि हम जब 24 घंटा हम वेरेवर भी आए, हमने सबसे खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि हमारे जीवन का ध्येय क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ माई लाइफ। तो हम सबको पूछेंगे तो किसी का रहता है कि मुझे मेरा बिजनेस XYZ लेवल पे लेके जाने का है, किसी का रहता है कि मुझे XYZ गाड़ी लेने की है, किसी का रहता है कि मुझे XYZ जगह पहुंचना है। तो मेरा पर्सनल एक इसको देखने का लुकआउट ऐसा है कि ये अपना जीवन का एम हो सकता नहीं है, क्योंकि पकड़ लो कोई अपने को रहता है, जैसे मुझे पकड़ लो बिजनेस है, मुझे बिजनेस 100 CR के ऊपर लेके जाने का है, 1000 CR के ऊपर लेके जाना है, तो पर्टिकुलर वो टारगेट तक पहुंचने के बाद उसका क्या, लाइक 1000 CR का मेरा टारगेट है बिजनेस का, बट अगर वो मेरे लाइफ का एम होता तो वो टारगेट अचीव करने के बाद मेरा एम क्या रहेगा। सो एम ऐसा चाहिए जो हमारे थ्रू आउट लाइफ टाइम हमारे साथ चलना चाहिए, सो दैट कैन बी टू सर्व द सोसाइटी फॉर द लार्जर कॉज। ऐसा सब कुछ लेकर हम चलते हैं तो हम छोटी छोटी चीजों में पढ़ेंगे नहीं, और बड़ी चीजों में हमको आप जैसे सब लोग एकत्र यूनाइट हुए हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें रोटरैक्ट के माध्यम से मिला है, उसके लिए हम सबने एक प्रिविलेज करके अच्छा लेना चाहिए संधि, और इस अच्छा मंच पे मुझे बुलाने के लिए आप सबका धन्यवाद। आई एम नॉट अ गुड ऑरेटर, ये जो भी मेरे था ये बोलते स्पॉन्टेनियस था, और इसके बाद भी आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट देयर। मैं एंड करूंगा स्वामी विवेकानंद जी के कोट से। उनका कहना था कि गिव मी 100 मेंस एंड आई शैल चेंज द वर्ल्ड। ओके, तो मुझे लगता है यहाँ 100 से ऊपर ही लोग हैं, तो मैं तो स्वामी जी तो हूँ नहीं पर फिर भी एक उसका ये था मोटिव था कि इनफाइनाइट रिसोर्सेस और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग अपने पास रहती है, तो हमने उसको एक्सप्लोर करना है और लार्जर कॉज के लिए यूज करना है। थैंक यू सो मच। पास में आ जाओ, पास में आप सामने आ जाओ ना आप भी। एक मिनट We're also felicitating them with a shawl and a shreefal. वैसे रुकना है, सामने देखिए भैया।